Yes. So we have learned the definition and meaning of index number, but at the same time we need to clarify few things. See, index number doesn't mean it is a price index. If variable under the study is price, and if you find relative changes of price, then it becomes price index. If quantity is compared, then it becomes quantity index. If value is compared, it becomes value index. Means index number is not just for the price, but yes, unless and until it is not specified clearly. Suppose it is clearly specified that it is value index or quantity index, then it becomes quantity index or value index. But nothing is specified, consider it is a price index. क्यों ऐसा माना जाता है? See, the first time such relative changes measurement study has been conducted for prices only. Italian researcher Mr. Carli has first time started and used its device index number for its study. The study was impact of discovery of America on the price level of Italy. And first time it is used for price measurement, so it is popularly considered as price index, but this tool can be used for any other variable for changes you want to study. Okay, moving to some other point. How to construct index. So today the another topic is construction of index numbers. Okay, so there are basically two methods, or you can say two approaches for constructing index numbers. First approach is FBI. Another is CBI. FBI and CBI. Two investigation agencies are there, you know. It's a US investigation agency, Federal Bureau of Investigation. It's an Indian investigation agency, Central Bureau of Investigation. You might have thought so, and I explained, but ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम नहीं है भाई. FBI का मतलब है फिक्स बेस इंडेक्स, और CBI का मतलब है चेन बेस इंडेक्स. Okay, there are two approaches in construction of index number, fixed base index and chain base index. पहले ये समझ लेते हैं फिक्स बेस और चेन बेस क्या है. ओके, फिक्स बेस और चेन बेस में फर्क क्या है? In fixed base index, the literal word is, in fixed base index, base period remains constant throughout the period of comparison. Means मैं 2001 की प्राइस को सपोज मैं बेस प्राइस मान के चलो, और 2001 को मैंने बेस ईयर मान लिया है. फिर मैं 2002 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 10 का, 15 का, जब भी मैं इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करता हूं तो मैं कंसीडर करूंगा 2001 की प्राइस को.
मतलब उसकी प्राइस के साथ कंपेयर करूंगा, मतलब जो रेफरेंस पॉइंट है वो मैंने फिक्स कर दिया है, वो 2001 पे रुका हुआ है, इट्स अ फिक्स्ड ओवर देयर, और वो फिक्स किया हुआ है, इसका मतलब वो फिक्स बेस, और वो पैटर्न से मैं इंडेक्स कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं तो होता है फिक्स बेस इंडेक्स। ओके, व्हाट हैपेंस इन चेन बेस इंडेक्स? चेन बेस इंडेक्स में सपोज मुझे 2001 को बेस लेके मैंने 2002 का मैं इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करता हूं, लेकिन मुझे जब 2003 का इंडेक्स निकालना है तो मैं बेस 2002 को लूंगा, जब मैं 2004 का इंडेक्स निकालूंगा तो 2003 बेस हो जाएगा। मींस पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज नॉट फिक्स्ड, पॉइंट ऑफ रेफरेंस keeps on changing. So in fixed base index, base period remains constant, fixed throughout the period of comparison, while in chain based index, base period keeps on changing. और वो भी क्या होगा तो immediately preceding period is considered as base period. In chain based index, immediately preceding period is considered as base period. Suppose मैं 2015 का इंडेक्स निकालूंगा तो 14 will be base period, 16 का निकालूंगा तो 15 बेस हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं चेन बेस्ड इंडेक्स। अच्छा, दोनों मेथड में कुछ न कुछ प्रोस एंड कॉन्स है, समझ के चलो। इन फिक्स्ड बेस्ड मेथड base period remains fixed or you can say constant, so long term trend or long term changes are measured and analyzed. In chain based index, short term changes or short term measures can be understood. मतलब शॉर्ट पीरियड में क्या चेंजेस हुआ है उसका स्टडी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म स्टडी के लिए फिक्स बेस अवेलेबल है, शॉर्ट टर्म स्टडी के लिए चेन बेस्ड मेथड अवेलेबल है। ओके, इन फिक्स बेस्ड मेथड वी नीड टू डिटरमाइन अ पर्टिकुलर पीरियड एज अ बेस पीरियड, and determining a base period is also a difficult task and needs some consideration that will be discussed in later part of this lecture. And in chain base we don't need to determine base period by default, preceding period is considered as base period. So in fixed base index we need to determine, the question of determining base period arises only in fixed base. In chain base no such question arises because by default preceding period is considered as base period. For long term analysis fixed base index is considered, for short term analysis chain base index is considered. Okay, now the point is, when we need to determine fixed base, in fixed base index a particular period as base period, so how it can be determined? For that purpose you need to consider 2-3 things, and after considering these things you can determine which period to be taken as base period. First of all, the base period should not be ऑफ रिमोट पास्ट, और पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब आप जो पीरियड का इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करते हो उससे बहुत रिमोट पास्ट का पीरियड आप सिलेक्ट मत करो एज अ बेस पीरियड, क्योंकि कंपैरिजन जो होगा वो बहुत पुराने, मतलब इफ आई कंपेयर 2020 को 1950 के पीरियड के साथ कंपेयर करें तो ये कंपैरिजन ही काम का नहीं रहेगा, it will have no meaning at all. So first point, base period should not be of remote past. Second, base period में आप जो भी commodity services है वो सभी करंट पीरियड की जो भी commodity services है वो base period में भी अवेलेबल होनी चाहिए, मतलब you should select base period in such a manner that all the commodities and services available in current period should be there in base period. मतलब ये समझो कि आज इंटरनेट, मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब आज की डेट में जो लोगों को इजीली अवेलेबल है,
वो सब चीजें 80s में या 70s में अवेलेबल नहीं थी। तो जो कमोडिटी सर्विसेज आज अवेलेबल है, तो आज की तारीख में जो मैं बेस ईयर ले सकता हूं वो ऐसा ही लूंगा जो बेस ईयर में भी ये सब कमोडिटीज अवेलेबल हो। तो रिमोट पास्ट का नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है ऑल द कमोडिटीज एंड सर्विसेज अवेलेबल इन करंट पीरियड शुड बी देयर इन बेस पीरियड आल्सो। तो बेस पीरियड को सिलेक्ट करने में ये भी ध्यान देना है। और थर्ड पॉइंट है बेस पीरियड शुड बी फ्री फ्रॉम all abnormalities. Free from all abnormalities should be a normal year. That means ऐसा कोई पीरियड है जिसमें वॉर हुआ हो कंट्री का, या फिर कुछ अर्थक्वेक या ऐसे कुछ नेचुरल डिजास्टर या कुछ ह्यूमन मेड या मैन मेड डिजास्टर हो चुके हैं जो इकोनॉमी को काफी डिस्टर्ब करते हैं। तो जैसे कि ये कोरोना का सिचुएशन है, तो मैं 2020 का पीरियड बेस बना के दूसरे नॉर्मल ईयर को कंपेयर करने जाऊंगा तो ये बेस ही एबनॉर्मल है, तो वो कंपैरिजन ठीक नहीं हो सकता। इसके लिए आपको ऐसा पीरियड सिलेक्ट करना चाहिए जो नॉर्मल हो, मतलब पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस ना हो, इकोनॉमिकल डिस्टर्बेंस ना हो, इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल एबनॉर्मलिटीज। ये तीन चीजें ध्यान में लेके हमको एक अच्छा सा एक पीरियड सिलेक्ट करना है बेस ईयर के तौर पे या बेस पीरियड के तौर पे। सपोज ऐसा कोई सिंगल पीरियड रिसेंट पास्ट में अवेलेबल ना हो, तो क्या करते हैं ये लोग, एक्सपर्ट ने ये भी एक ऑप्शन दिया है कि ऐसा ना हो तो आप पास्ट के 2-3 ईयर का एवरेज वैल्यू लेके उसको बेस बना दो। सो दैट इज आल्सो, but it should be done only when the normal regular or normal period is not available. This is only the way you can select. ऐसा नहीं कि भाई नहीं मिल रहा है तो ठीक है, तो अपने कर ले सकते हैं कि भी एवरेज पीरियड को भी बेस बना सकते हैं। ओके, सो फिक्स बेस एंड चेंज बेस दो अप्रोचेस है। अच्छा, फिक्स बेस हो या चेंज बेस हो, ठीक है, काम तो एक ही करना है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन करंट ईयर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन बेस ईयर या बेस पीरियड इनटू 100। ये अभी हमने देखा था इंडेक्स का। करंट ईयर का वैल्यू डिवाइड बाय बेस ईयर का वैल्यू इनटू 100 करेंगे तो इंडेक्स बन जाएगा। अच्छा, मतलब वो चेन बेस हो फिक्स बेस हो, दोनों में फॉर्मेट यही है। हाँ, सिर्फ बेस ईयर में जो वैल्यू रखेंगे वो किसी फिक्स पीरियड की रखेंगे तो फिक्स बेस है, और प्रीवियस पीरियड की रखेंगे तो वो चेन बेस है। मतलब मैथमेटिकली फॉर्मूला के हिसाब से देखा जाए तो आप कोई भी अप्रोच से जाओ, कोई चेंज नहीं है फॉर्मूला के हिसाब से। हाँ, बेस में आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, कोई फिक्स पीरियड की लेनी है या फिर प्रीवियस पीरियड की, बस यही चेंज है। लेकिन इसकी वजह से फॉर्मूला चेंज नहीं होता। तो हम फिक्स बेस का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली वो चेन बेस के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है, ठीक है। तो फिक्स बेस इंडेक्स एंड चेन बेस इंडेक्स। चलो हम फिक्स बेस से काम शुरू करते हैं। उसमें दो पैटर्न है, मेथड ऑफ रिलेटिव्स एंड मेथड ऑफ एग्रीगेट्स। मेथड ऑफ रिलेटिव, पहले हम उसको देखते हैं। अच्छा, देखो इसमें हमारे पास दो मेथड है, अरिथमेटिक मीन ऑफ रिलेटिव एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिलेटिव। बट geometric mean of relative is not there in our syllabus, so we go with arithmetic mean of relative. हाँ, उसमें दो मेथड है, एक तो है सिंपल अरिथमेटिक मीन और दूसरा है वेटेड अरिथमेटिक मीन। सिंपल अरिथमेटिक मीन ऑफ रिलेटिव हम पहले देखते हैं। सपोज मैं प्राइस इंडेक्स कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, यहां पहले मैं ये बता दे रहा हूं, मतलब फॉर्मूला पूरी प्राइस इंडेक्स के सेंस में हम पढ़ेंगे। मतलब वेरिएबल इज प्राइस,
construction of index number assuming what? Variable is price. Okay, so in simple arithmetic mean of relative, if there is a single product, single एक ही प्रोडक्ट या एक से ज्यादा प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट है मतलब एक प्राइस है, जैसे आपने बताया था कि 2011 में एक कमोडिटी ए 20 रुपीस में मिल रही है और 2019 वो 25 में मिल रही है, तो हमने इंडेक्स कंस्ट्रक्ट किया सिर्फ कमोडिटी ए का, और जब मैं सिर्फ एक कमोडिटी का इंडेक्स कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं तो उसको बोलते हैं सिंगल कमोडिटी। तो सिंगल कमोडिटी का इंडेक्स आपको पता है, वो तो समझ में आ गया, I इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। ये सिंपल अरिथमेटिक मीन ऑफ रिलेटिव्स, और वो भी एक ही कमोडिटी के लिए, सिंगल कमोडिटी के लिए। लेकिन इकोनॉमी में एक कमोडिटी होती नहीं है, और आप जनरल लेवल ऑफ प्राइस कंपेयर करना चाहते हो कि 19 की कंपैरिजन में 2019 में 2011 की कंपैरिजन में प्राइस में जनरल लेवल में क्या चेंज हुआ है, मतलब आप एवरेज निकालना चाहते हो। और एवरेज अरिथमेटिक मीन से, सिंपल अरिथमेटिक मीन से मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ जाना है, तो आपको ये जो रेशियो है P1 by P0 वो किसी एक कमोडिटी के लिए नहीं, सभी कमोडिटी के ऐसे रेशियोज निकालने होंगे, और फिर उसको डिवाइड बाय कमोडिटीज के नंबर्स n से डिवाइड कर दो, तो ये आपका इंडेक्स हो जाएगा। ये सभी का समेशन करेंगे, मतलब P1 by P0 into 100, एक कमोडिटी दूसरी तीसरी ऐसी हर कमोडिटी का उसका समेशन और डिवाइड बाय n, तो ये एवरेज हो गया। तो ये मल्टीपल कमोडिटी, हाँ इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे सेपरेटली 100 n टाइम्स काउंट करो, उससे बेटर एक काम ये भी कर लो कि सिग्मा P1 अपॉन P0 डिवाइड बाय n कर दो और एक ही बार 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल आल्सो डू द सेम थिंग। तो ये दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो सिंपल अरिथमेटिक मीन ऑफ रिलेटिव्स अंडर फिक्स्ड बेस मेथड फॉर्मूला इज फॉर सिंगल कमोडिटी P1 by P0 into 100 एंड फॉर मल्टीपल कमोडिटी, मतलब एक से ज्यादा कमोडिटी है तो सिग्मा P1 by P0 into 100 होल डिवाइड बाय n, और दूसरा उसी का एक्सटेंशन फॉर्म सिग्मा P1 upon P0 डिवाइड बाय n एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये मेथड में काम कर चेन बेस हो तो यहां जो P0 हम लिख रहे हैं कोई एक फिक्स पीरियड का ले रहे हैं, उसके बजाय प्रीसीडिंग पीरियड का लेंगे, तो चेन बेस में वही चीज है। अच्छा, वेटेड में क्या आएगा, एग्रीगेट्स में क्या आएगा, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज हमको सिर्फ यही समझना है कि एक्सक्यूज मी, कि सिंपल अरिथमेटिक मीन ऑफ रिलेटिव्स, फिक्स्ड बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड में फॉर्मूला क्या थी, तो यही फॉर्मूला है, सिंगल कमोडिटी P1 by P0 और मल्टीपल कमोडिटी एग्रीगेट, मतलब एवरेज ऑफ ऑल दिस। सेकंड पॉइंट, you must be able to understand interpretation of index number, इसके साथ ये आपको जानना जरूरी है। Suppose index number is 120, then you can say prices have been increased by 20%. Prices have been increased by 20% in current year compared to base year, क्योंकि बेस ईयर का इंडेक्स हमेशा 100 मान के चलेंगे, बेस ईयर का या बेस पीरियड का इंडेक्स हमेशा 100 होगा। सपोज प्राइसेस बढ़ रही है और इंडेक्स 100 से बढ़ रहा है, 200 हुआ या 300 हुआ, इसका मतलब सपोज इंडेक्स इज 200, इसका मतलब प्राइसेस हैव बीन इंक्रीज्ड बाय 100%, ये मान के चल सकते हैं। दैट मींस व्हाट, आपको ऐसा बोला जाए कि बेस ईयर की कंपैरिजन में करंट ईयर में प्राइसेस 30% इंक्रीज हुई है, व्हाट विल बी द इंडेक्स नंबर, डेफिनेटली यू कैन से I equals to 100 plus 30 means 130. Prices have been increased by 50%, then index will be 100 plus 50. Prices have been increased by X%,
द इंडेक्स विल बी 100 प्लस x। तो इंडेक्स का ये इंटरप्रिटेशन है कि इंडेक्स नंबर, अच्छा कोई पूछेगा कि सर इंडेक्स नंबर कभी 100 से कम हो सकता है? हो सकता है। सपोज प्राइसेस कम हुई, या समझ के चलो कि प्रोडक्शन कम हुआ तो क्वांटिटी इंडेक्स, तो उस वक्त सपोज इंडेक्स 75 हुआ तो आप ऐसा बोलोगे कि prices have been decreased by 25% in current year compared to the base year। तो इंडेक्स, बेस ईयर का इंडेक्स हमेशा 100 होगा, और इंडेक्स का नंबर की वैल्यू होगी इट इज फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कोई उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होता है। आप नहीं बोल सकते कि इंडेक्स नंबर इज 120 रुपीज, सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि इंडेक्स नंबर 120 हो सकता है, इट्स एब्स्ट्रैक्ट नंबर, इसका कभी यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं हो सकता, ना केजी हो सकता है ना रुपीस हो सकता है। तो ये कुछ एडिशनल चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये थियोरेटिकल बैकग्राउंड जो हमने आज कवर किया और ये लेक्चर में कवर किया, इसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल्स कवर करने जा रहा हूं, तो वो एग्जांपल देखो और उसके हिसाब से आप एडिशनल कितने एग्जांपल कर सकते हो, वो जो स्टडी मटेरियल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड किया है उसमें से मैं होमवर्क दूंगा और आपको वो कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू very much।